وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عمران خان ملک پر اچانک نازل نہیں ہوا بلکہ منصوبے کے تحت اقتدار میں لایا گیا۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ریاست و سیاست کا دوبارہ بیڑا اٹھایا ہے، ملک کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ تفصیل جانتے ہیں ملک عمر سے۔ دفاع خواجہ محمد آصف نے سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں ملک معاشی اور سیاسی زبوحالی کا شکار ہوا۔ ہم پاکستان کی ترقی کے رکے ہوئے سفر کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جمہوری اقدار اور اخلاقیات کو تج کر سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی۔ اچانک جو ہے عمران خان پاکستان پہ نازل نہیں ہوا۔ اس منصوبے کو جب لانچ کیا گیا تو ایک ایجنڈے کے تحت اس کے بعد جو آنے والی تباہی جو ہے اس کو روکنے کی پچھلے 3-4 سال میں پچھلی جو ہماری حکومت تھی ہم نے پوری کوشش کی اور دوبارہ تعمیر جو ہے پاکستانی معاشرے کی، پاکستان کی سیاست کی، ریاست کی جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ لیکن جو منصوبہ ساز تھے انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس شخص کو وطن عزیز پہ، اس ریاست کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر مسلط کرنا ہے اور اس کے نتائج جو ہے آپ کے سامنے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عمران نیازی کو اقتدار میں لانا تباہی کا تجربہ تھا۔ مرشد نے زلفی بخاری کے ذریعے گھڑیاں بیچی، عمران خان نے چندے کے پیسے بھی کھائے، ان کی اقتدار اور دولت کی ہوس کی کوئی حد نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو دن جو ہے کال کوٹریوں میں گزارے، کون وہ دن واپس لے کے آئے گا؟ یہ گناہ آج بھی اور محشر کے روز بھی عمران خان کے اور عمران خان کے ساتھ جو اس کے شریک جرم تھے ان کے ذمہ آئے گا۔ آج سارا ملک اس بات کی گواہی بن گیا ہوا ہے، ہمارے حالات اس بات کی گواہی بن گئے ہوئے ہیں۔ یہ تجربہ غلط تھا، یہ تباہی کا تجربہ تھا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، جیسا کہ نواز شریف نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کارکن محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں کریں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ دروغ گوئی اور الزام تراشی عمران خان کا وتیرہ ہے، ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچانے والا قوم کو اپنی کارکردگی بتائے۔ راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی معافی نے عمران نیازی کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں کارکنوں کو متحرک کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں ہونے والے ورکرز کنونشن میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ کی قیادت پر عمران خان کے لگائے گئے الزامات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توشاخانہ سے چوری میں ملوث شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے کی کوشش میں بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اگر تم نے چوری نہیں کی تو جواب دو۔ فورن ایجنٹ 8 سال جواب نہیں دیا۔ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو کیا کیا؟ الیکشن کمشنر کو گالی دی، عدالتوں کو گالی دی، کمرے کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر دی اور بعض شہداء کے خلاف مہم چلائی۔ یہ اتنا بے شرم آدمی ہے۔ 4 سال اس ملک پر مسلط رہا، کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں کچھ کر نہیں سکا۔ تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، تمہارے پاس صرف فرح گوگی اور پنکی پھیرنی تھی۔ توشا خانہ کی چوریاں کی، ہیرے اکٹھے کیے، زمینیں اکٹھی کی۔ تم 4 سال وہ گند ڈال کے گئے، وہ معاشی تباہی کر کے گئے، وہ بے روزگاری کر کے گئے کہ آج 6 مہینے میں دن رات صبح دوپہر شام صرف شہباز شریف کو ایک ہی سوچ ہے کہ میں مہنگائی کیسے ختم کروں، میں کیسے روزگار دوں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمرانی دور میں نواز شریف کے عوامی خدمت کے منصوبوں کو نہ صرف بند کر دیا گیا بلکہ ہمارے کارکنوں کو جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 2016 میں جب یہی ملک 6.2 پر ترقی کر رہا تھا، جب یہی ملک، اس ملک میں مہنگائی 2.3% تھی، ملک میں سی پیک تھا، ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لنگر خانے نہیں لگ رہے تھے، نواز شریف صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا
किसी को गाली नहीं दे रहा था, किसी को गले से पकड़कर घसीटने की गुफ्तगू नहीं कर रहा था। और उस वक्त भी ये फसादी, ये साजिशी, ये नालायक, ये नाअहल, ये तोशा खाना चोर, वह उस वक्त भी किसका इंतजार कर रहा था? अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। नौजवानों के रोजगार के लिए नवाज शरीफ सीपैक ला रहा था, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म कर रहा था, IMF को रोल बैक कर रहा था। उस वक्त भी ये फसादी क्या कर रहा था? धरना कर रहा था। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान ने 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। घड़ी चोरी तुम करो, ज़कात तुम खाओ, इस मुल्क की बर्बादी में अपना हिस्सा डालो। तुम्हारे फ्रंटमैन लोगों की जायदादें खा जाएं, तुम्हारे घर का किचन चलाएं, तुम्हें गाड़ियां दे। वर्कर्स कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली ताहरा औरंगजेब समेत हाजी परवेज खान और दानियाल चौधरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं कि वज़ीर आज़म का विजन है कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जाए। नौजवानों को डिजिटल स्किल से रूशनास कराने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। इस हवाले से BS और MS क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी से ही मईशत तरक्की करती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में अहसन इकबाल ने कहा कि सनती तरक्की ने मईशत की तरक्की को पहिए लगा दिए। उन्होंने कहा कि दाखिली के साथ हमें खारजा सतह के चैलेंजेस भी दरपेश हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो एक मिलाप है, यही इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम किस तरह ICT को बरूए कार ला के अपनी मईशत के अंदर एक प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़्यादा वसाइल मौजूद नहीं हैं और हम 2 बड़े खसारों का सामना कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लेकर आ सकते, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उससे प्रोडक्टिविटी में ब्रेक थ्रू लेकर आएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुना है घड़ी चोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी हैं? यकीनन नहीं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि घड़ी चोर की इदारों को अपनी टाइगर फोर्स में बदलकर गैर आइनी काम करवाने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी होंगी। माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान अभी तक इस उम्मीद पे हैं कि उन्हें 2018 की तरह इक़्तिदार में लाया जाएगा। ये शख्स अभी तक इदारों की मिन्नतें कर रहा है कि उसके हक़ में मदाखलत करें। एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान के पंजाब में इत्तेहादी असेंबली तोड़ने के हक़ में नहीं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मार्च तक असेंबली तहलील नहीं होगी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा भी सूबाई असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि पहले पंजाब असेंबली तहलील की जाए। शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इमरान खान की किसी धमकी में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सियासत में बातचीत गैर मशरूत होती है। हुकूमत से पहले मुतालबात, गुफ्तगू से पहले मुतालबात नहीं किए जाते। इमरान खान अगर इंतखाबी फ्रेमवर्क पर बात करना चाहते हैं तो मुस्बत यू टर्न लें और असेंबली में वापस आएं। बसूरत दीगर ये लोग फिर इंतखाबात के बाद धांधली का रोना रोएंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान को गलत फहमी है कि वो पॉपुलर हैं, इसलिए जल्द इलेक्शन चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के बाद इनको अपनी मकबूलियत का पता चल गया होगा। शेरी रहमान ने कहा कि मौजूदा माशी हालात का जिम्मेदार इमरान खान खुद है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान हुकूमत में होते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। पंजाब में सियासी सूरत हाल के हवाले से हैजानी कैफियत तारी है। असेंबली को तहलील करने के ऐलान के बाद काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तरजीहात में फर्क साफ ज़ाहिर है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जल्द आम इंतखाबात के लिए तारीख देने का मुतालबा करते हुए तमाम असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर रखा है, जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां शामिल हैं। इमरान खान का मानना है कि वो इस हिकमत अमली से वफाकी हुकूमत पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए दबाव डाल सकते हैं। ताहम सूबा पंजाब में सूरत हाल इतनी भी आसान नहीं। यहाँ हुकूमत तो इमरान खान की जमात की है, लेकिन वजीर आला उनकी जमात से नहीं। पंजाब असेंबली तहलील करने का इख्तियार वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पास है। क्या वो इमरान खान के कहने पर असेंबली तहलील करेंगे? इमरान खान साहब ने जब असेंबली तोड़ने का ऐलान किया तो वो पिंडी मार्च में किया था। गए तो वो थे इस हुकूमत को गिराने के लिए, अब वो अपनी हुकूमतें गिराने के दर पे हैं। और परेशानी हुकूमत को नहीं है, परेशानी खुद तहरीक इंसाफ और काफ लीग में है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत पे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग हैं और उन्होंने जाके उन्हें बावर करवाया है कि जी बात ये कि मैं आपके डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, आप जब कहेंगे तोड़ देंगे, लेकिन बात मेरी समझ लें। और वो बात उन्होंने एक्चुअल इमरान खान साहब को नहीं, उनकी सारी पार्टी को समझा दिया और उनको समझ आ गई है। देखें, इस वक्त जिस सूरत हाल के अंदर खान साहब असम्बली तोड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये उनके पार्टी के मफाद में होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की जमात की हिमायत के बगैर हुकूमत में नहीं रह सकती और परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की हिमायत के बगैर वजीर आला नहीं रह सकते। चंद दिनों पहले पंजाब काबीना में नए वजीर के इजाफे ने भी कई सवालात को जन्म दिया है। एक तरफ एक लम्हे में असेंबली तोड़ने का दावा, तो दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तौसी। ये सूरत हाल यकीनन दोनों जमातों की सियासी तरजीहात में फर्क को जाहिर करती है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और शुक्रिया को अपनी आदत बना लीजिए। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। अल्लाह सुब्हाना व तआला, सबसे पहले उसका शुक्र कि उसकी करीम ज़ात हमसे प्यार करती है, हर मरहले में हमें आगे बढ़ाती है और हमें बहुत नवाजती है। लेकिन अल्लाह ताला भी ये कहता है कि मुझे उस वक्त तक पसंद नहीं है शुक्रिया जब तक मैं जिसको ज़रिया ना बनाऊं। और हमारे इर्द गिर्द का माहौल और जो लोग, और बिलखसूस असातिज़ा जिनका दर्जा भी वालिदैन के बराबर है, वो हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। हमारा आपकी इस कामयाबियों में, आपके स्कूल्स ने, आपकी इस यूनिवर्सिटी ने, इस मादरे इल्मी ने और मादरे वतन हमारे मुल्क पाकिस्तान ने जो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट आपको पैदा किया, तो हमें अपने फाउंडिंग फादर्स का भी शुक्रिया अदा करना है, उनके लिए दुआ करनी है। हमारे इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमारे सिपाही जो अपना पसीना और खून बहाते हैं इसको महफूज रखने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना है। हमने अपने वो तमाम लोग माशरे में जो बेहतरी लाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको भी एक्नॉलेज और थैंक करना है। इट इज़ a momentous stage for you as you are now qualified engineers and scientists, ready to embark upon your professional journey. I also extend my special felicitations to the Vice Chancellor and his teaching faculty, as without their support, dedication and commitment, this success would not have been possible. After completion of your formal education, you can contribute effectively for the development and progress, your progress, society's progress, motherland, and for the entire world. We have to have global perspective. We have to be relevant in today's world. I want to see all of you successful. और आपकी कामयाबी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि आपकी इस मादरे इल्मी ने आपको it has equipped you with the required and requisite knowledge and the know-how कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतर होते चले जाएं, क्योंकि आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं और आपकी कामयाबी में हम सब की कामयाबी है। आज ये जो मेला सजा है और हम सब इकट्ठे हुए हैं,
آج اس یونیورسٹی میں آپ کے جتنے سال مکمل ہونے کے بعد آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سب اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ آپ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. یو آر آور فیوچر، یو آر آور ایسٹ. آپ نے جو علم حاصل کیا، وہ علم جس کو ہمارے مذہب میں فرض قرار دیا گیا ہے، یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ جب قرآن کریم نازل کیا گیا تو اس کا پہلا لفظ اقرا، پڑھو کہا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس یونیورسٹی سے تو جا رہے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے سے کبھی آپ اس میں بریک نہیں آنے دیں گے. یو ہیو ٹو بی اے لائف لانگ لرنر. آگے بڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے. علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر. دیر از نو ادر وے اینڈ دیر از نو ادر آپشن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو چیز فرض قرار دی جاتی ہے اس سے روح گردانی از ناٹ ایون این آپشن. اور نسخہ ہے کیمیا تعلیم کے ساتھ ساتھ. یہ تعلیم تو آپ کو نئے بیریئرز جو ہے وہ آپ کو کراس کرنے میں مدد دے گی، نئے دروازے کھولنے میں، آپ کو دروازے اور نئے باب وا کرنے میں آپ کے لیے ایک آپ کے سرٹیفکیٹس اور آپ کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز ایک کیٹلسٹ ثابت ہوں گی. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کی کامیابی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی، آپ کے کردار میں مضمر ہے. آپ اگر اچھا کردار کریں گے تو آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ حسن اخلاق اور رائٹ کریکٹر ٹریٹس اپنے اندر پیدا کیجیے. آپ جانیے کہ حلم کیا ہے، میگنینیمیٹی کیا ہوتی ہے، گریٹیٹیوڈ کیسے شو کرنا ہے، ظرف کیسے دکھانا ہے، کمپیٹ کیسے کرنا ہے، اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے کنٹینیوس امپروومنٹ اینڈ کائزن، جو جیپنیز کانسیپٹ ہے کہ ہر روز بہتری، اور جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا، بلیور کا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو یو ہیو ٹو ہیو دا رائٹ کریکٹر ٹریٹس. آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھیے، آپ اگر ایماندار ہوں گے، اف یو آر ٹروتھفل، اگر آپ آنیسٹ ہوں گے، تو اگر آپ کے اندر صحیح کریکٹر ٹریٹس ہوں گے تو آپ ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. چاہے کوئی دکاندار ہو، چاہے کوئی ملٹی نیشنل کا بہت بڑا بگ باس ہو، چاہے کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی پلیسڈ ہو، وہ اسی کو ڈیلیگیٹ کرے گا، اسی کو ٹیم لیڈر بنائے گا جس میں اس سے یہ کوالٹیز نظر آئیں گی کہ وہ کیئرنگ ہے. کیئرنگ پرسنس لیڈرز ہوتے ہیں، اسے ٹروتھفل ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. So that's a recipe for success. That's a recipe to become a leader. And you have to lead. You have to become a leader. No matter آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں. Leaders are caring. علامہ اقبال نے کہا صداقت، truthful. عدالت کا you have to be just. آپ کو ہمیشہ انصاف پسند ہونا چاہیے. اور شجاعت کا leaders are courageous. They take big decisions. And they are اپنے سخی ہوتے ہیں، جرأت مند ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ پھر you will again be a leader. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زندگی اپنی رکھیے کہ اس کے آپ کے مقاصد اعلیٰ و عرفہ ہوں. ہیو اے میننگ فل لائف. ایک بامقصد زندگی بنائیے. اور میں آپ کو ضمنی طور پہ یہ بتا دوں کہ پیسہ کمانا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنا مقصد حیات پیسہ کمانے کو بنایا، جب ان سے ان کی لیٹر پارٹس آف دیئر لائف جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسہ تو بہت بنا لیا، لیکن ہمیں نہ صرف یہ کہ لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے. اور گورنر پنجاب علیغ الرحمان اسلام آباد میں کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ طلباء کی کامیابی میں والدین اور اساتذہ کا بڑا کردار ہے. نوجوان ہمارا مستقبل اور اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں.
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुल्क भर में वर्कर्स को मुतहर्रिक करने के लिए कन्वेंशंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में 13 दिसंबर को इस्लामाबाद, 14 को लाहौर, 15 दिसंबर को शेखुपुरा, 16 को कसूर जबकि 17 दिसंबर को फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर भारत-कऊ बाईपास की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की दरख्वास्त समेत यूनिवर्सिटी के ज़मीन पर प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ हुक्म इम्तना भी खारिज कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद जुमे को फैसला महफूज किया था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तामीरात रोकने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत ने भारत-कऊ बाईपास केस में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में हिरासती मराकज़ में तशद्दुद के खिलाफ केस में नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड को फ्रीक बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नायाब नस्ल के जानवरों की इंपोर्ट पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत आइंदा साल फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत ने ज़हूर ट्रेडर्स की जानिब से केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वजारत मौसमियाती तब्दीली के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। ठट्ठा में दरियाए सिंध के करीब गांव इस्माइल अगेम के सैलाब से ज़ेरियाब आने वाले प्राइमरी स्कूल के तलबा सख्त सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल को फौरी तौर पर मुरम्मत की ज़रूरत है। स्कूल में असातिज़ा और फर्नीचर की भी कमी है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? हालिया सैलाब और बरसात के बाद जहाँ सड़कों को नुकसान पहुँचा, ज़मींदारी ख़त्म हो गई और घर तबाह हो गए, वहाँ स्कूलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। अभी तक लातादाद स्कूल ऐसे हैं जो ज़ेर-ए-आब हैं या टूट फूट का शिकार हैं। गांव इस्माइल अगेम में जो है एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे जो हैं तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हैं और खुले आसमान तले बैठे हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। ये गांव जो है पूरा बरसात में डूब गया था। पानी तो ख़त्म हो गया है लेकिन ना तो स्कूल की मरम्मत हो सकी है, ना ही जो स्कूल ज़ेर तामीर था वो मुकम्मल हुआ है। स्कूल बहुत अच्छी है, सब टली असांखे स्कूल असांखे हिकिड़ो टीचर बि ॾियो, फर्नीचर बि सब ॾियो ऐं असांखे हिकिड़ो उस्ताद बि ॾियो। ज़मीन में वेठा आहियूं, बोर्ड में बोर्ड आई हिते सभु ॿुॾी विया, उन वजह असांखे स्कूल की ॾियो, टीचर ॾियो। उस्तादा का कहना यह है कि बच्चों की तादाद ज़्यादा है, उस्ताद कम है, सिर्फ एक ही उस्ताद है वो जो पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चे सर्दी के अंदर बैठे हैं, सुबह सवेरे आते हैं, इनको सख्त सर्दी लगी। ना हमारे पास फर्नीचर है, ना ही हमारे पास जो है यूनिफॉर्म है बच्चों की। बच्चे जो है बड़ी तादाद में स्कूल में आते हैं लेकिन क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है, काफ़ी बच्चे बीमार भी हो गए हैं, वो स्कूल आने से भी कासिर हैं। अब जो ये सैलाब आया था उनमें सारा गाँव डूब गया था और कोई चीज़ नहीं बची थी इधर। हमारे पास स्कूल भी नहीं है, बच्चे भी बहुत हैं, स्कूल के लिए फर्नीचर भी नहीं है। हमें स्कूल भी दिया जाए जिससे कि हमारे सारे गांव के बच्चे अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकें और दूसरे टीचर की भी ज़रूरत है, बहुत बच्चे हैं इधर। फौरी तौर पे स्कूल की तामीर मुकम्मल की है, एक दो उस्ताद हमें दिए जाएँ, फर्नीचर स्कूल को दिया है। इस तरह बच्चे भी बड़ा सख्त परेशान है, कहते हैं हम आते हैं तो हम खुले आसमान तले बैठे हैं, हमें बड़ी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो इन सब ने हुकूमत सिंध, वज़ीर आला सिंध से गुजारिश की है कि स्कूल की मरम्मत की जाए, स्कूल को फर्नीचर दिया जाए और एक दो उस्ताद और दिए जाएँ ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने मसला कश्मीर के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए इस देरीना तनाज़े का हल ज़रूरी है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद।
ایوان صدر مظفرآباد میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران اسلامی رابطہ تعاون تنظیم کے جنرل سیکرٹری حسین ابراہیم طاہا کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر OIC کی ترجیحات میں شامل ہے. ہمارے دورے کا مقصد اپنی آنکھوں سے صورتحال کا جائزہ لینا اور بین الاقوامی دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروانا ہے. On pourra pouvoir les réaliser un peu et voir si we met with some victims of these atrocities made by the Indian army, and we met with them, we interacted with them, and it is our responsibility also to find out a solution with our partners, with the international community, with our member states. This conflict is a long-lasting conflict. It is our duty to set out a solution, to find it for one day, to get out of this solution, because the most important thing is the basis is peace. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. Our duty at OIC is to try to find out a solution. I just want to emphasize that in OIC we are working based on resolutions that were adopted by member states. We realize, for example, on this line of control, since more than 2 years there is no attack, and it was a bit calm. That's why I think we have to build on this issue, just to try to find out the way to get in touch with the stakeholder to find out a peaceful solution for this, because this situation is not good neither for India nor for Pakistan or Kashmir. اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ OIC کے جنرل سیکرٹری کی آمد سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی. اس سے پہلے OIC کے سربراہ ایوان صدر پہنچے تو صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے ہمراہ ان کا استقبال کیا. ایوان صدر میں OIC کے سربراہ اور صدر آزاد کشمیر کے درمیان ملاقات میں مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مشیر برائے امور کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے. اس سے پہلے OIC کے سربراہ نے مشیر برائے امور کشمیر اور آزاد کشمیر کابینہ کے اراکین کے ہمراہ مظفرآباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور جدوجہد آزادی میں لہو کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی. OIC کے سربراہ نے یقین دلایا کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے تاکہ خطے میں امن کا قیام ممکن ہو سکے. عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفرآباد، آزاد کشمیر. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے اگست 2019 کے بعد مقبوضہ وادی میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق پامال کیے گئے. مختلف بھارتی ایجنسیوں کی طرف سے لوگوں کو بلا جواز گرفتاریاں اور اختلاف رائے کا اظہار کرنے والا کسی بھی شخص کو نشانہ بنانا روز کا معمول ہے. شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. اور ملک بھر کی طرح سندھ کے مختلف شہروں کراچی، سکھر اور کشمور میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں مختلف پیشہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء کی جانب سے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. ترکیہ کے صدارتی دفتر سے جاری بیان کے مطابق مذاکرات میں توانائی سمیت ترکیہ روس تعلقات پر بات چیت کی گئی. گفتگو کے دوران اناج راہداری اور انسداد دہشت گردی سمیت علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. صدر پیوٹن سے گفتگو کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ہم 1 کروڑ 30 لاکھ ٹن سے زائد اناج ضرورت مندوں تک پہنچا چکے ہیں. اناج راہداری کے تحت ہم غذائی مصنوعات سمیت مختلف اشیاء کی برآمدات کو فروغ دے سکتے ہیں. صدر رجب طیب اردوان نے 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے حوالے سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ شام کے شمال میں علیحدگی پسند تنظیم کے دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کی ضرورت ہے.
सदर रजब तैयब एर्दोगान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौके पर यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए इस्तांबुल मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी फौज यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखे हुए है। अवाम से खिताब में उन्होंने कहा कि रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में बिजली का निज़ाम दरम बरम है, जिससे मुल्क का ज़्यादा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उड़ीसा में हालात ज़्यादा तशवीशनाक है, जहाँ 15 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। दारुल हुकूमत केव के मुताबिक इलाकों में भी रूसी फौज के हमले जारी हैं। खबर देंगे आपको बरतानिया से, जिसके जजीरे जर्सी में एक इमारत में धमाके से 3 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा लापता हो गए। चीफ पुलिस ऑफिसर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफसोसनाक वाक़े में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। धमाके से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि जिंदा बच जाने वालों की तलाश का अमल जारी है। धमाका मुमकिन तौर पर गैस खारिज होने से हो सकता है। धमाके में 3 मंजिला इमारत राख का ढेर बन गई। भारतीय पुलिस मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना इक़दामात में मसरूफ शरपसंद अनासर को खुली छूट। नामालूम अफराद का शिमाली तरन के ज़िले में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला। पाकिस्तान की सरहद के करीब भारत के शिमाली तरन ज़िला में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड फायर किया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने हाईवे से ग्रेनेड फायर किया, जिससे सरहाली पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तफ्तीश जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमी इत्तेहाद रेल नेटवर्क पर काम तेज़ी से जारी है। चीनी कंपनी के साथ मुश्तरका तौर पर शुरू किए गए रेलवे ट्रैक पर तकरीबन 75% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नकलो हमल का एक अहम निज़ाम होगा, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। यह अहम सनती और ज़्यादा आबादी वाले इलाकों और बंदरगाहों को मिलाने में भरपूर किरदार अदा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में इत्तेहाद रेल का मंसूबा सऊदी अरब की सरहद से ओमान सरहद तक फैला हुआ है, जो खलीजी रेलवे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा साबित होगा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। एयरपोर्ट्स बंद होने से मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। बरतानिया के सिविल एविएशन के मुताबिक शदीद बर्फबारी के सबब मुतादिद एयरपोर्ट के रनवेज आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। मुसाफिरों से कहा गया है कि जैसे ही परवाजें दोबारा शुरू होंगी उन्हें मुत्तला कर दिया जाएगा। उधर मोटरवे पुलिस ने दर्जनों ट्रैफिक हादसा के बायस आवाम को घरों में रहने की हिदायत की है। रुक करते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। महकमा पुलिस भी महकमा सुई गैस की टीमों के साथ मुआवनत कर रही है। ऑपरेशन के पहले मरहले में टीमें गैस की मेन लाइनों से डायरेक्ट कनेक्शंस और गैस कनेक्शंस की गैर कानूनी तौसी और चोरी शुदा मीटरों की तनसीब में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस दौरान चोरी शुदा मीटर कब्जे में ले लिए गए हैं, जबकि मुलव्वस अफराद के खिलाफ महकमाना तादीबी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। गुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट की 5वीं सालाना तकरीब रावलपिंडी के इलाके कहूटा में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी महरीन अनवर राजा ने ट्रस्ट के चेयरमैन आसिफ रब्बानी कुरैशी की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। MD ब्लू वर्ल्ड वेलफेयर फाउंडेशन चौधरी नदीम एजाज ने ऐलान किया कि दोनों ट्रस्ट मुश्तरका तौर पर गुर्दे के मरीजों के लिए फ्री ट्रांसप्लांट सेंटर का बहुत जल्द आगाज़ कर देंगे। इस मौके पर उन्होंने गुलाम रब्बानी किडनी डायलिसिस सेंटर के लिए 10 लाख रुपए अतिया किए। ट्रस्ट के चेयरमैन आसिफ रब्बानी कुरैशी, सदर रहमानी बरादरी सेठ गुलाम रसूल, सदर ओवरसीज रहमानी बरादरी अब्दुल रज़ाक और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क भर में फलाही मनसूबों के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट किडनी सेंटर में माहाना हज़ारों मरीजों के डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो इलाके में मजीद मनसूबे शुरू कर रहे हैं, जिनमें फ्री ब्लड बैंक और फ्री लेबोरेटरी के कायम पर काम का आगाज कर दिया गया है। और अभी रुक करते हैं शहर कायद का, जहां इस वक्त एक्सपो सेंटर में जारी कुतुब मेले के आखिरी रोज भी तलबा, नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली इस वक्त कुतुब मेले में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी बताइए कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? कुतुब बीनी से और मुताल्ले का रुझान रखने वाले लोग हैं, वो पूरे घराने यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ सुबह से ही जो आना तांता बंधा हुआ है। इस वक्त भी हज़ार अफराद हर हाल में मौजूद हैं और अब तक इस एक्सपो सेंटर में, इस आलमी कुतुब मेले में लाखों अफराद विज़िट कर चुके हैं और करोड़ों रुपए की कुतुब फ़रोख्त हो चुकी हैं। अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अदब के ऊपर किताबें यहाँ पर ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं। अदब पे, मज़हब पे, समाजियात पे, फ़िक्शन पर,
साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब, तमाम शोबा हाय ज़िंदगी पर जो कुतुब मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। 330 से ज़ायद स्टॉल हैं, जिसमें 140 पाकिस्तानी पब्लिशर्स शामिल हैं, नामवर पब्लिशर हैं, जिनकी तमाम मौज़ूआत पर कुतुब मौजूद हैं। इसके अलावा 40 इदारे जो है बैरून मुल्क यहाँ पर आए हैं और उनके स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें तुर्की है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, हिंदुस्तान है, चीन है और दूसरे ममालिक हैं जहाँ जिनकी कुतुब यहाँ पर रखी गई हैं। और अवाम में जो इससे कुतुब बीनी का फ़रोग बढ़ रहा है, ये एक्सपो इसमें बहुत मुआविन साबित हो रही है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की खुसूसी हिदायत पर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट पर ज़िला खुस्तान में अपनी मदद आप के तहत कायम स्कूल को बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन की ग्रांट के तहत चलने वाले स्कूलों में शामिल कर लिया गया है। स्कूल के बानी मोहम्मद फारूक को उनके इलाके में तालीमी तरक्की के लिए बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन में मुलाजमत भी फ्राहम की गई है। वज़ीर आला ने महकमा तालीम को स्कूल के वसअत के मनसूबे को आइंदा PSTP में शामिल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि शोबा तालीम में काम करने वाली सिविल सोसाइटी की हर मुमकिन हौसला अफजाई और सरपरस्ती की जाएगी ताकि दीगर लोग भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। और सकाफत किसी भी कौम की पहचान होती है। बलूचिस्तान सकाफत की पहचान बलोची छड़ी हर ख़ास मौके पर तोहफे के तौर पर दी जाती है, बल्कि इसके बगैर हर त्यौहार अधूरा तस्वुर किया जाता है। मज़ीद देखते हैं फाइक अली बुगटी की इस रिपोर्ट में। बेड़ा बुगटी में बलोची छड़ी बनाने का फन हजारों साल पुरानी है। खूबसूरत डिजाइन की छड़ी बनाना मेहनत तलब अमल, मगर इसकी उजरत बहुत कम। बलोची छड़ी बनाने के लिए जंगलों से बेहतरीन लकड़ी की तलाश की जाती है। कऊ का लकड़ी पहाड़ियों से हम जाके ढूंढ के काट के लेते हूँ। बिल्कुल उसको जो है हम बना के बराबर करके नमूना से बना के पाकिस्तान से दे रहे। करम अली बुगटी और उनके साथियों का ताल्लुक बुगटी कबाइल से है। उनके आबा व अजदाद भी दस्तकारी से खूबसूरत डिजाइन की बलोची छड़ी बनाकर बेचा करते थे। 300 रुपए का हम लेके आते हैं, कश्मीर से कोटिया से मिलता है। फिर इसके ऊपर निशान लगाते हैं, मोर लगा के बेचते हैं, 1500 का बेचते हैं। बलोची छड़ी बनाने का फन बुगटी कौम की पहचान है, जिसे जिंदा रखने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। नाज़रीन, सिंधी अदब की अहम सिन्फ काफ़ी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले शायर ने अपने वक्त के मशहूर शायरों की शायरी को जमा करके एक किताब तश्कील दी है। सिंधी अदबी बोर्ड की जानिब से इस खूबसूरत किताब की तकरीब रूनुमाई का अहवाल अमीन रिप्लाई की रिपोर्ट में। सिंधी शायरी की मुख्तलिफ सनफ़ें हैं, जिसमें वाई है, बैत है और काफ़ी है। बरसगीर के तमाम शायरों ने काफ़ी पर बहुत ज़्यादा तब आज़माई की गई थी। इसी सिलसिले में उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले खान साहब अब्दुल करीम पली, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने सिंध के वो मशहूर शायरों की काफ़ी को एक किताब की शक्ल दी थी। आज सिंधी अदबी बोर्ड की तरफ से उस किताब को फिर से छपवा कर मार्केट में लाया गया है। अली साहब ने फिर मखदूम साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए काफ़ी को फ़रोग दिया और वर्ण जो वरी वार वायु वरिया, ये बहुत अच्छी किताब है जिसमें नारे और उमरकोट के शोराए कराम का कलाम भी शामिल है। मौजूदा दौर में सिंधी अदब की ये सनफ जिसको काफ़ी कहा जाता है, बहुत कम काम किया गया है, लेकिन सिंधी अदबी बोर्ड की तरफ से इस सनफ पर हद से ज़्यादा काम करने की वजह से एक किताब भी तरतीब दी गई है। चीन से पाकिस्तान आने वाली जदीद एयर कंडीशन कोचेस पेशावर में कैंट रेलवे स्टेशन पर हुक्काम के हवाले कर दी गई हैं। पाकिस्तान चीन दोस्ती के तहत पाकिस्तान ने 230 से ज़ायद जदीद तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोचेस में से पहली 40 कोचेस वसूल की हैं। तफसील बता रही हैं पेशावर से मलिहा अहमद। चीन से पाकिस्तान आने वाली जदीद एयर कंडीशन कोचेस की रौनुमाई पेशावर में कैंट रेलवे स्टेशन पर की गई। इस मौके पर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद ने नई कोचेस में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक नई कोचेस की दरामद से रेलवे मजीद फाल होगा। जो हमने नई चाइनीज कोचेस इंपोर्ट की हैं पेशावर से, उसका ट्रायल था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सक्सेसफुली आ गई हैं और फिर यहाँ से वापस भी चली गई हैं। तो ये बेसिकली हमारा चाइना के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एक मुआहदा हुआ था। ये 230 कोचेस का प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ तैयार कोचेस जो आनी थी वो आ गई। बकाया जो हमारी कोचेस हैं वो तकरीबन 80% जो हैं ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी, कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में। इन बोगियों को आजमाइशी बुनियादों पर रावलपिंडी से कराची के रूट पर चलाया जाएगा। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि नई कोचेस में मुसाफिरों के लिए आरामदेह नशिस्तें और सर्दी गर्मी के मौसम के मुताबिक जदीद सहूलियात रखी गई है। इन बोगियों में इकॉनमी क्लास, मयारी पार्लर और एयर कंडीशन कोचेस शामिल है।
मलिहा अहमद, PTV न्यूज़, पेशावर। मौसम सरमा का आगाज होते ही कश्मीरी चाय के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। कश्मीरी चाय कैसे बनती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से हसीब हैदर की रिपोर्ट। कश्मीर अपने हुस्न की वजह से जन्नत का नज़ारा पेश करता है, तो कश्मीरी चाय अपने जायके और खुशबू के एतबार से दीगर तमाम मशरूबात की निस्बत लाजवाब है। पाकिस्तान में आम तौर पर पी जाने वाली चाय दूध और पत्ती के अज्जा पर मुश्तमिल होती है, लेकिन दूध में बादाम, पिस्ता, इलायची और लौंग शामिल कर लिए जाएं तो पकने वाली चाय कश्मीरी चाय बन जाती है। ये चाय कश्मीर जैसे सर्द इलाके के हर घर में अमूमन इस्तेमाल होती है, ताहम मुल्तान जैसे मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की आमद के साथ ही इसके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। अच्छा टॉनिक भी है, अच्छी चीज़ भी है, तो इस वजह से चाय ली जाती है। चाय के ज़्यादा पिस्ता बादाम वगैरह होते हैं। कश्मीरी चाय एक्चुअली तो ये कश्मीर की सौगात है, लेकिन मुल्तान में बड़ा डिलीशियस टेस्ट मिलता है। कश्मीरी चाय दूध के साथ और इसके बगैर भी तैयार की जाती है। हमारे इलाकों में इसके इस्तेमाल का मकसद खुश्क मेवाजात की अफादियत को हासिल करना है, ताकि तवानाई में इजाफा हो और सर्दी के असरात से महफूज रहा जा सके। कश्मीर में खास पत्तों से बने कहवे में दूध, इलायची और बेकिंग पाउडर डालकर गुलाबी चाय तैयार की जाती है। सर्दियों में शादी के खानों के साथ कश्मीरी चाय ना हो तो कुछ तशनगी सी रह जाती है। मौसम सरमा में चाय लाजिम व मलजूम है। चाय कश्मीरी हो तो ना पीने वाला भी उसे पीने पे मजबूर हो जाता है। हसीब हैदर खान, PTV न्यूज़, मुल्तान। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -11, काला -5, स्कर्दू और गोपिस में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।